تو اس لیے دین سیکھیں علماء سے. یہ جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں آج کل, یہ کتابوں کا مطالعہ کر کے پراپر کسی مدرسے میں نہیں پڑھے ہوتے, پراپر کہیں سے علم حاصل نہیں کیا ہوتا, تو یہ لوگ اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کو فالو کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, شیخ النکاح, مرشد صاحب, کمال کر دیا آپ نے کیا ہی بات کر دی, مزہ آ گیا. دین صرف عالم مفتی جو ڈگری یافتہ ہو بس اس سے سیکھنا چاہیے, باقی کسی سے نہیں. جنہوں نے دین کو پیشہ بنایا ہے بس اسی سے دین سیکھا جائے گا. اور جو لوگ اپنے اپنے پیشے چھوڑ کر دین کا کام کر رہے ہیں, دنیاوی طور پر وہ ڈگری والے مفتی اور مولوی سے زیادہ پڑھے لکھے کیوں نہ ہو, لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی. وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ان کو صرف ریفرنسز یاد ہوتے ہیں, حوالے رٹے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. You also find in Judaism about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18 of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. In the New Testament, Christianity is mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Gospel of John, chapter 15, verse 26. Gospel of John, chapter 16, verse number 7. Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. There are many verses in the Old Testament and the New Testament prophesying about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ کلام کرے اور اسے اپنے غیب کے اوپر مطلع کرے سوائے اپنے پیغمبروں کے. اور پھر ساتھ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ, ان کی غیبی خبروں کے اوپر. علم الغیب کا تعلق صرف اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہے. وہ حوالہ دینا کافی نہیں ہوتا, اس کا اصل معنی و مفہوم, اس کا کانٹیکسٹ, اس کا سیاق و سباق صرف اور صرف جو ڈگری والا مولوی اور مفتی ہے وہ جانتا ہے. باقی جو انجینئر ہے, پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, اس کا کیا پتا بھائی, وہ جا کر لوگوں کے پنکھے ٹھیک کرے. اگر پروفیسر ہے تو فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی پڑھائے, اور اگر وہ ڈاکٹر ہے تو جا کے نزلہ, کھانسی, زکام, بخار کا علاج کرے. مفتی صاحب کمال کر دیا آپ نے, کمال کر دیا. ہندو پنڈتوں کے دل جیت لیا آپ نے. ان کا کافی عرصے سے اعتراض یہی چل رہا تھا کہ جس ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کو ہلا کر رکھ دیا, ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا, وہ خود ہندو پنڈت اس سے پریشان ہو گئے تھے. لیکن مفتی صاحب آپ کے اس بیان کے بعد کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. وہ بہت خوش ہو گئے اس حوالے سے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھائی کوئی عالم نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی ڈگری یافتہ نہیں, اس کے پاس تو اسلام کے اندر جو مفتی اور عالم اور علامہ کی ڈگری ہوتی ہے وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے. یہ کہاں سے کھول کھول کے ہماری کتابوں کے حوالے دے رہا ہے اور رٹے لگا کے آتا ہے اور لوگوں کو ہمارے گمراہ کر رہا ہے. عیسائیت بھی ان سے پریشان تھی کہ یہ جو ہے وہ پروفیشن سے ڈاکٹر ہے, یہ کہاں سے عالم بن گیا, یہ کہاں سے مفتی اور جو ہے علامہ بن گیا, یہ کہاں سے ہماری کتابیں پڑھ رہا ہے اور حوالے دے رہا ہے. ہندو ان سے پریشان تھے کہ بھیا یہ حوالے جو دے رہا ہے ایک ابراہم دوتیا ناستک, اور عیسائیت کے حوالے دے رہا ہے کہ گاڈ اور لارڈ از ون گاڈ. اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو پھر اس نے مجھے بولا آپ علی مرزا انجینئر جو ہے نا, اس کا یوٹیوب پہ دیکھو کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ہندو ہو, کرسچن ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کی خدمت کریں. ایک دن میں نے دیکھا, مجھے اچھا لگا, مجھے پتہ چلا کہ اس میں مسلمان کیا ہوتا ہے, اللہ کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. کیونکہ ہم تو ہندو تھے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا, پہلے تو ہم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے. پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں, جو کچھ بھی ہے اللہ ہی ہے. کمال, کیا ہی کمال کر دیا مفتی صاحب آپ نے ان لوگوں کے لیے. مزہ آ گیا ان کو, تو وہ تو خوشی سے مارے نڈھال ہو گئے کہ جو کام ہم نہ کر سکے وہ مفتی صاحب نے کر دیا. دیکھو ان کا اپنا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی ڈاکٹر سے, کسی انجینئر سے, کسی پروفیسر سے دین نہیں سیکھتے. اس کے بھی مذہب کا نہیں, وہ ہمارے مذہب کی باتیں بتا رہا ہے. رٹا لگانا کافی نہیں ہوتا, اس کا معنی, اس کا مفہوم, اس کا کانٹیکسٹ, اس کا سیاق و سباق ہم پنڈت جانتے ہیں. یہ کیا جانے ڈاکٹر ذاکر نائک, اس کو کیا پتا کتابوں کا. یہ صرف رٹے لگا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. چلو جی اب فٹافٹ جتنے لوگ ذاکر نائک کے دلائل کو سن کر جو ہے اسلام میں داخل ہوئے ہیں, اسلام لائے ہیں, یا جتنے بھی عیسائی جو ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن کر ایمان لائے ہیں اور وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, وہ فٹافٹ اسلام سے نکل جائیں, دوبارہ ہندو بن جائیں اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں. کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی عالم نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی علامہ نہیں. اس وجہ سے وہ لوگوں کو صرف رٹے لگا کر ریفرنسز دینا یہ کافی نہیں ہوتا. مفتی صاحب کیا ہی بات کر دی. عیسائی خوش ہو گئے, پنڈت خوش ہو گئے آپ
हिसाब से फटाफट जाओ बुतों की पूजा करो, हिंदुओं जाओ खुशी करो, तुम्हें एक इस्लाम के मुफ्ती ने सर्टिफिकेट दे दिया कि दीन जो है वो डॉक्टर से, प्रोफेसर से, इंजीनियर से नहीं सीखना। इसी तरीके से जो बरेलवी था, जो मज़ारों के ऊपर सजदे करता था, जो दरगाहों के चक्कर काटता था, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर या गौसुल आज़म अल मदद के नारे लगाता था, ओ शिया जो अलमों के आगे झुकते थे, जो मट्टियों के आगे झुकते थे, जो हज़रत अली को मुश्किल कुशा समझते थे, हाजत रवा समझते थे। या अली मदद कहते हैं ना, मौला अली से मदद मांगते हैं, तो बाज़ लोगों को ये जुमला हजम नहीं होता। मौला से मदद मांगना गैर खुदा से मदद नहीं है। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? तो बारिश फरिश्तों से मांगी जाएगी या अल्लाह से? अल्लाह से। अच्छा, अगर कोई फरिश्तों से मांग लेके यार खैर अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, सर वो मुशरिक हो जाएगा। और ये कुरान में लिखा हुआ है, आप पारा नंबर 20 खोल लें। भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है और उसकी तकलीफ उससे दूर करता है और तुम्हें अपने माँ बाप के मरने के बाद खलीफा करता है इस जमीन पर। आ इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटी हो? कलीलन मा तज़क्करून, बड़े कम लोग ही नसीहत पकड़ते हैं। और सबसे पहले तो मौला अली के गिरबान पकड़ेंगे जिन्होंने मौला अली के बारे में अकीदा घड़ लिया। मौला अली भी अपनी नमाजों में अल्लाह को पुकारते थे। मौला अली का मानने वाला भी होगा जो अल्लाह को पुकारेगा। वो इंजीनियर की बात सुनकर तुम कहाँ मवाहिद हो गए? तुम कहाँ से एक अल्लाह को हाजत रवा और मुश्किल कुशा मानने लगे? ओ मेरे भाई फटाफट जाओ, इंजीनियर से दीन न सीखो, अपने अपने आलिम जो 17-17 साल में डिग्रियां लेते हैं उनसे सीखो। तुम कहाँ इंजीनियर के पीछे लग गए? ओ बरेलवियों, तुम्हारे पास आलिम कम है क्या? तुम अपने आलिमों से दीन सीखो और इंजीनियर से जो तुमने सीखा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, वो इंजीनियर ने बात बताई है। मेरे भाई आप अपने अपने आलिमों से दीन सीखें। फटाफट जो तौहीद और मवाहिद बन चुके, तौहीद को एक्सेप्ट कर लिया, वापस चले जाएं। मुफ्ती साहब ने फरमा दिया दीन जो है वो इंजीनियर से नहीं, इंजीनियर सिर्फ हवाले देता है, इंजीनियर सिर्फ जो है रेफरेंसेस का रट्टा लगाकर लोगों को गुमराह कर रहा है। जाओ जाओ अपने मदारों पर जाओ और जाओ सजदे करो, जाओ अल्लाह के अलावा जितने तुम मददगारों को पुकारते थे पुकारते रहो। जाओ शिया, जाओ अपने अलमों को चूमो, जाओ अपने जरियों को चूमो, जाओ अपने शबियों को चूमो, जाओ हजरत अली को अपनी मुश्किल कुशाई के लिए, अपनी हाजत रवाई के लिए पुकारो। तुम कहाँ इंजीनियर के पीछे लग कर जो है वो मवाहिद बन गए, एक अल्लाह के मानने वाले लग गए, किताब और सुन्नत के दाई बन गए, किताब और सुन्नत का मनहज इख्तियार कर लिया। और जिन लोगों ने डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह दाई कुरान की वजह से कुरान की तरफ लग गए, कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान से मुतालिया शुरू कर दिया, वो लोग नहीं जानते डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह कोई मौलवी नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई डिग्री याफ्ता आलिम नहीं। तो मेरे भाई उनके पीछे कहाँ लग गए आप? छोड़ दें कुरान पढ़ना। मुफ्ती साहब ज़्यादा जानते हैं, डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह नहीं जानते थे। आपको क्या पता इसका सयाक व सबाक क्या है? हर शख्स ही को जो है हाथों में कुरान दे दिया और वो कुरान पढ़ने लगा और वो कुरान के तर्जुमे पढ़ने लगा, माना वो मफ़हूम करने लगा। मेरे भाई कुरान इतना आसान है, सिर्फ मुफ्ती साहब समझ सकते हैं। डॉक्टर इसरार को क्या पता, डॉक्टर जाकिर नाइक को क्या पता, इंजीनियर और प्रोफेसर्स को क्या पता? आप कहाँ से उनके पीछे लगकर आपने कुरानों को हाथ में उठा लिया, कुरानों को पढ़ना शुरू कर दिया तर्जुमे से और उसकी तफासीर पढ़ना शुरू कर दी। बेशक कुरान के अंदर मौजूद है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान कर दिया है, कोई से नसीहत हासिल करे। तो मेरे भाई मुफ्ती साहब को इसका ज़्यादा पता है, मुफ्ती साहब को इसके कॉन्टेक्स्ट का पता है, मुफ्ती साहब को इसके सियाक़ो सिबाक़ का पता है, डॉक्टर इसरार को क्या पता, इंजीनियर को क्या पता इसके सियाक़ो सिबाक़ का। अगरचे कुरान में आया हुदल लिन्नास है, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है, अल्लाह कह रहा है पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है, लेकिन मेरे भाई मुफ्ती साहब ज़्यादा जानते हैं। हर एक कोई इंसान जो है ना वो कुरान से नहीं पढ़ सकता, हिदायत नहीं ले सकता, उसको नसीहत हासिल नहीं हो सकती, उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ हासिल नहीं हो सकती। कोई भी जो है बेकरी वाला, मेडिकल स्टोर वाला, फैक्ट्री वाला, कोई भी कुरान खुद से उठा कर ना पड़े। मुफ्ती साहब ज़्यादा जानते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके सियाक़ व सिबाक़ को। अगरचे कुरान के अंदर आया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए पैदा की गई हो क्योंकि लोगों को अच्छाई की तलकीन करते हो और बुराई से रुक जाने की तलकीन करते हो। बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अगरचे तुम्हें एक आयत का भी इल्म हो तो वो लोगों तक पहुँचा दो, लेकिन तुमने नहीं पहुँचाना। तुम जब तक आलिम ना बन जाओ, जब तक डिग्री ना ले लो, जब तक मुफ्ती ना बन जाओ, जब तक अल्लामा ना बन जाओ। बेशक अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, बेशक कुरान में आया है, क्योंकि उसका माना व मफहूम, चूँकि उसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ मुफ्ती साहब को पता है, इसके अलावा किसी और को नहीं पता। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो है आपने चुप से जो है मुफ्ती साहब को सुनना है, मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंजीनियर को जो सुनते हो, डॉक्टर को जो सुनते हो, या किसी और को, ऐसे शख्स को, प्रोफेसर को सुनते हो, उन सब के चैनल्स को आपने अनसब्सक्राइब कर देना है। और मुफ्ती साहब के जो डिग्री याफ्ता हैं, जो अल्लामा हैं, जो आलिम हैं, जो मुफ्ती हैं,
उनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर किसी वक्त भी आपको नंगे इश्तहारात मिल जाएं उसमें वीडियो बयान के अंदर, आपने घबराना नहीं, आपने परेशान नहीं होना। नंगे इश्तहार जब जियो पे चलें, नंगे इश्तहारात जब ARY पे चलें, डॉन न्यूज़ पे चलें, या नंगे इश्तहारात जो है दीगर चैनल्स पे चलें, TV पे चलें, तब वो हराम होते हैं। जब वो मुफ्ती साहब के चैनल पे चले तो वो कहते हैं कि बड़े बड़े उलमाओं ने, हमारे पास तो पहले ही दलीलें बहुत थी इसके हलाल होने की, बड़े बड़े उलमा भी इसके बारे में वो हक समझते हैं, इसको जायज़ समझते हैं। तो मुफ्ती साहब इसका कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, नंगे इश्तहारात कहाँ चलेंगे कहाँ नहीं चलेंगे। इसलिए चूंकि वो आलिम हैं, चूंकि वो मुफ्ती हैं, कि उनके पास डिग्रियां हैं, ये इंजीनियर क्या जाने, ये प्रोफेसर क्या जाने, ये डॉक्टर इसरार क्या जाने। मैं जायज़ नाजायज़ का बता सकता हूं कि जो इंटरनेट पर इश्तिहारात की अर्निंग है वो हलाल है या नहीं है। अगर वो हराम होती तो मैं उनको मना कर देता, लेकिन उस पर फतवा जामिअत रशीद का यही है कि चंद शर्तों के साथ वो हलाल है। और जो हमारे एडमिन है वो कहते हैं हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। नहीं यारी बात समझ, जो एडमिन है ना, जो चैनल को चला रहे हैं, वो कह रहे हैं खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो फी सबीलिल्लाह ये खर्चे पूरे नहीं होते। जाहिर है खर्चे कैसे पूरे होंगे जब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तीन तीन बीवियां होंगी, चौथे की तलाश होगी, दो दो तीन तीन गार्ड्स होंगे, 4WD में घुमा जाएगा, जहाज़ से सफ़र किया जाएगा, बैरून मुल्क सफ़र किया जाएगा, 8-8, 10-10, 12-12 लोगों की टीम के साथ सफ़र किया जाएगा। तो कैसे गुजारा होगा, कैसे अखराजात बर्दाश्त किए जाएंगे। तो थोड़ा बहुत तो नंगे इश्तिहारात चलाने दे दें ताकि हमारे खर्चे निकल जाएँ। इसलिए कंक्लूडिंग बात यह है कि जो जो इंजीनियर को सुनकर मवाहिद हुआ, कुरान और सुन्नत के मनहज पर आया, जो जो डॉक्टर इसरार को सुनकर जो है कुरान को पढ़ने लगे, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने लगे और गौर व फिक्र करने लगे और अपने आप को सुधार लिया और अच्छे और बुरे की तमीज़ करने लगे, जो जो लोग डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनकर हिंदू मज़हब को छोड़कर इस्लाम में आए, जो जो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनकर ईसाईयत छोड़कर इस्लाम में आए, मेरे भाइयों, ये लोग ये आलिम नहीं थे, मुफ्ती नहीं थे, डिग्री नहीं थे, इनको हवाले याद थे, रट्टे लगाए हुए थे, लेकिन सिर्फ हवाला देना काफ़ी नहीं था। तो मुफ्ती साहब के बकौल ये अपने अपने वापस बुतों की पूजा करने लग जाएं। हिंदू ईसाई जो है ईसा इब्नुल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानना शुरू हो जाएं। शिया अपने यहाँ शिरक शुरू कर दें, बरेलवी अपने यहाँ शिरक शुरू कर दें, अहले हदीस नास भी बन जाएं, सब वैसे ही हो जाएं जैसे जैसे पहले थे। और मुफ्ती साहब से सिर्फ दीन सीखें, क्योंकि मुफ्ती साहब को तमाम सयाको सबाक, कॉन्टेक्स्ट, माना व मफहूम सब उनको मालूम है।